Assalamualaikum. Good morning, student. Today I will explain chapter number 4 for standard 7, The Ashes That Made Trees Bloom. The chapter is based on a Japanese tale of the 19th century. The story is about an old couple who has a pet dog named Muko. The old man was a rice farmer. He worked really hard in the field from morning till dusk. The dog would also follow him every day to the field. The old man was very kind to all the things that had life. One day, just like every day, Muko came along with the old man to the field, but on that day the dog was running to and fro and was pointing to a particular spot. The old man then followed the dog, and when they dug the place, they found a pile of gold. This changed the life of the old couple. They became rich and bought land, gave feasts to their friends and neighbors, and also to the poor. In the same village, there lived another old couple who were very greedy. When they came to know that the dog led to the old man to the treasure, they tried to lure Muko by giving bits of fish in a hope that the dog would also find a treasure for them. The greedy old couple took the dog out. When they reached near a pine tree, the dog began to scratch the ground. The old couple then started digging the ground near the pine tree and to their disappointment found a dead kitten. This made the old couple angry and they beat the dog to death. After the death of Muko, one night he came into the dreams of the old farmer. In the dream, the dog asked the old man to cut down the pine tree over his grave and make rice pastry and a meal. Make rice pastry and a meal for the bean sauce. The old couple did accordingly. The dough they made for baking the pastry suddenly changed into gold coins and they became rich again. The greedy old couple now grew more jealous. They borrowed the mortar and mill from the old farmer, but their pastry and sauce changed into worms in anger. They burned down the mill. The old farmer again had a dream about the dog. This time the dog told him to get the ashes from the mill and spread it on the pine tree that were withered. This way the pine tree will start blooming again. The old man did as the dog instructed and spread some ashes on the withered pine tree. Suddenly there was a full bloom. There was a custom during the days of a daimyo, then when the lord passes along the high road of the village, to the common people who would kneel down as a sign of respect until the Lord had passed by. But the old man was upon the tree, so he sprinkled some ashes and scattered it over the tree. And everywhere there was blossom. The Lord was delighted to see the wonder and thanked the old man. When the greedy old couple came to know about this, they went to the mill, took some ashes and went to the highway. When the Lord trains came, they scattered some ashes on the withered cherry tree, but nothing had happened. Rather, a handful of dust fell into the eyes and nose of the Lord and his wife. The greedy couple were dragged and beaten to death. Then the old couple lived peacefully. बेटा ये स्टोरी है द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम. एशेज किसको बोलते हैं? राख. और मेड ट्रीज ब्लूम मतलब है ना, राख को जैसे झाड़ों पर डाला तो ब्लूम हो गए. ये एक कहानी है, जापानीज स्टोरी है 19th सेंचुरी की. इस कहानी में एक फार्मर था, किसान. वो राइस उगाता था, चावल का मतलब उसका खेत था, और उसके पास एक पालतू कुत्ता था, उसका नाम था मुको. वो दोनों है ना हमेशा मतलब है ना सुबह से लेकर वो किसान बेचारा काम करता था रात मतलब शाम तक, और हमेशा उसका कुत्ता जो वफ़ादार था वो उसके साथ हमेशा खेत में जाता था, उसकी मदद करता था. एक दिन की बात है, जब मुको और है ना वो किसान काम पे जा रहे थे, तो है ना कुत्ता मतलब मुको उल्टी सीधी दिशा में ना भाग रहा था, मतलब बार बार जाए एक जगह और रुक जाए. तो उसके मालिक ने बोला किसान ने कि मतलब ये ऐसा क्यों कर रहा है. तो उसने वहाँ पर वो जब मुको है ना वहाँ पर ज़मीन को खोदने के स्क्रैच करने लगा, खुदाई वो करने. तो उसके मालिक ने बोला चलो मैं खुदाई करके देखता हूँ कि यहाँ पर है क्या, क्यों मुको बार बार ये जगह पर आकर रुक रहा है. जब उसने खुदाई करा उसके मालिक ने, किसान ने, तो उसने क्या देखा कि अंदर से एक पाइल ऑफ गोल्ड मतलब एक है ना सोने का टुकड़ा मिला. तो सोने का टुकड़ा पाकर वो गरीब किसान बेचारे अमीर हो गए, मतलब एकदम अचानक अमीर हो गए. तो उन्होंने क्या करा कि ना घर बनाया, ज़मीन ली, और है ना लोगों को मतलब जो भी उनके दोस्त थे, गरीब थे, जो अमीर थे, सबको दावत देकर उन्होंने ट्रीट दी. अब वही विलेज में ना एक है ना पुराने मतलब जोड़ा रहता था, ओल्ड कपल.
ओल्ड कपल रहते थे पुराने, तो वो है ना बहुत ग्रीडी थे, मतलब लालच वाले थे। तो जब उन्होंने देखा कि ये अरे ये किसान को इसके कुत्ते ने मुखो ने एक मतलब है ना ट्रेजर दिलवा दिया सोना, तो चलो ना हम भी क्यों नहीं कोशिश करें। तो लोग ने लालच में क्या करा, वो कुत्ते को मच्छी का टुकड़ा दिया और उससे बोला कि चल, बोले मतलब उसको है ना उसमें से दड़बे में से निकाल कर लेकर गए और ट्रेजर ढूंढने के लिए, मतलब कुछ ना कुछ सोना इनको भी मिल जाए। जब वो कपल मतलब जब वो दोनों मियाँ बीवी, लालची मियाँ बीवी जब कुत्ते को लेकर गए तो वो एक पाइन ट्री के पास जाकर वो आगे पीछे घूमने लगा, पाइन ट्री को खोदने लगा ज़मीन। तो वो कपल क्या समझे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ सोना गड़ा होएगा या कुछ भी, चलो खुदाई करते हैं। तो लोग ने खुदाई करना स्टार्ट करा दोनों मियाँ बीवी ने। तो जब देखा मतलब उनके ना एकदम मूड ख़राब हो गया कि वहाँ पर एक बिल्ली का बच्चा दफन था, मतलब मरा हुआ बिल्ली का बच्चा दफनाया था। तो वो ओल्ड कपल को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कुत्ते को बहुत मारा मुको को, और बेचारा मुको मर गया, वो कुत्ता मर गया। थोड़े दिन के बाद उसके मौत के बाद है ना, मुको की मौत के बाद वो जो अच्छे जो उसके मालिक थे पहले वाले किसान, वो उसके ना ख्वाब में ना मुको आया। तो जब उसने मतलब है ना मुको ने आकर क्या बोला कि पाइन ट्री जो उसकी कब्र के वहाँ पाइन ट्री है ना, तो उसके वहाँ पर तुम लोग है ना राइस पेस्ट्री मिल बना सकते हो, सॉस। तो जैसे ही उसने बोला तो कपल ने वैसे ही करा, जैसे उन्होंने आटा गूंथकर और बेकिंग वहाँ पर है ना उसके कब्र के वहाँ पर जो पाइन ट्री था वहाँ पर उन्होंने काम चालू करा। तो जैसे ही वो पेस्ट्री बनाने लगे वो सोने के सिक्के में बनते चले गए, मतलब तो वो वापस से अमीर हो गए। अब यही बात है ना, वापस से वो मियाँ बीवी को पता चली, जो लालची मियाँ बीवी थे गांव के अंदर, लोग बहुत जल गए। तो उन्होंने क्या करा कि वो आदमी के पास जाकर बोला कि तेरी मोटर हम मिल की वो दे, हम लोग है ना पेस्ट्री और सॉस बनाएंगे ये। तो जैसे ही वो दोनों मियाँ बीवी ने काम चालू करा, लालची मियाँ बीवी ने, तो उसमें ना कीड़े, मतलब जैसे पेस्ट्री बनाना चालू करा उसमें कीड़े लग गए। तो लोग बहुत गुस्से में आ गए, तो उन्होंने आग लगा दी, मिल में आग लगा दी। द ओल्ड फार्मर अगेन, अब ये ना वही पुराना किसान जो मुको का पहला वाला मालिक था, उसको फिर से ना ख्वाब दिखा, और उसमें वो ख्वाब में ना मुको आकर क्या बोलता है कि जो मिल जल गई है तो उसका जो भी जितनी राख है ना उसको तुम्हें ना पाइन ट्री, जो उसके कब्र के वहाँ पाइन ट्री है उसके ऊपर वहाँ पर डालो। तो वैसे ही उसने करा कि जैसे ही वो मालिक ने जो सुना ना, तो उसने पाइन ट्री के आसपास डाला वो एशेस, तो वैसे ही वो ब्लूम करने लगी, पाइन ट्री एकदम खिली खिली हो गए। द ओल्ड मैन डिड एज द डॉग, मतलब है ना जैसे ही उसने वैसे ही बोला उन्होंने वैसे ही करा। अभी है ना गांव के अंदर एक कस्टम था, जो मतलब बहुत पैसे वाले होते हैं ना, लॉर्ड जैसे, मतलब जिसको है ना लोग भगवान खुदा मानते हैं, वो अपने ना और मतलब वाइफ के साथ है ना वहाँ पर बग्गी में बैठकर गांव के सैर के लिए निकले। लोगों ने ना मतलब कस्टम एक ऐसा चलता है रिवाज बेटा कि ना लोग रिस्पेक्ट देते हैं, जैसे कोई झुक कर देता है, कोई ना नील होकर देता है, बाव होकर, ऐसी। तो ये जो बेचारा बुढ़ा, ये बूढ़े जो किसान था, ये तो जहाज पर चढ़ा था। तो उसने क्या करा, वो एशीज है ना जैसी डाला ना राख, मतलब वो उसकी मिट्टी मिल की मिट्टी ऐसे डाला ऊपर से, तो वो है ना वैसे ही फूलों की तरह बरसने लगे। तो वो जो लॉर्ड थे वो बहुत खुश हो गए, उनकी वाइफ भी बहुत खुश हो गए। फिर वो लालची मियाँ बीवी वो मतलब जो जल रहे थे और जो जिनके दिल में लालच बहुत था, वो दोनों कपल के, उन्होंने वापस यही हरकत करी, वहाँ की मिल की ऐश चुराई और जाकर झाड़ के ऊपर बैठकर जैसे ही उन्होंने ना वो राजा, मतलब राजा उस पर है ना राजा पर, लॉर्ड पर और उसकी वाइफ पर डाला कि ये फूल बनकर बरसेंगे, तो मालूम पड़ा कि उनकी आंखों में वो कचरा घुस गया और है ना एकदम वो चिढ़ गए। तो लॉर्ड और उसकी वाइफ ने बहुत गुस्सा करा, मतलब ये बोले तुम लोग ने ये क्या करा, बोले हमारे आंखों में कचरा डाल दिया। तो उन्होंने क्या करा, अपने ना सिपाहियों से बोलकर उनको बहुत मारा भी, और वो दोनों मियाँ बीवी, लालची मियाँ बीवी मर गए। और वैसे ही फिर वो जो दो किसान थे, किसान और उसकी वाइफ दोनों हंसी खुशी रहने लगे। देखो बेटा, ये क्वेश्चन आंसर्स है रिलेटेड टू दिस चैप्टर, दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सी द questions are in the textbook, you can follow from that, and here are the answer I have given you, so copy from this. Thank you.